Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today of class 6. Dear students, as you know that we are doing chapter number 8. We have already done 8th A and 8th B. Today we are going to start 8th C. So, before starting this particular exercise, we are going to discuss proportion. What is proportion? So, we already know that what is ratio. So beta, ratio we already know that if we are comparing two quantities of same kind, if we are going to compare two quantities of same kind like this age and age, same na, two quantities means one person, another person, things, anything we are counting and using division. This is division. So this is called a ratio. Now today we are going to start proportion. They are saying that a proportion is an equation which states two ratio are equal. Means proportion एक equation है जो बताता है कि दो ratio equal हैं या फिर नहीं है. ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, आप ये देखो कि if suppose we are having four terms, A is to, we are reading this two column like this, A is to B is equal to C is to D. This is to means division, that division. Okay, now in proportion like this, A is to B and C is to D. So A, B, C, D. A is first term, second term, third term, fourth term. Okay, A is first term, B is second term, C is third term and D is fourth term. Okay, if we are having proportion like this, then if we have to find the ratio, then we are having one equation. What is that equation? Product of extreme is equal to product of means. मतलब extreme किसको बोलेंगे और means किसको बोलेंगे? आप ये देखिए कि A, B, C, D 4 हमारे पास टर्म्स हैं, तो इन दोनों बीच वालों को हम बोलेंगे मीन और जो ये किनारे किनारे वाले टर्म्स हैं उनको बोलेंगे हम एक्सट्रीम. ये आपको समझ आएगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. So our first question is determine if the following numbers are in proportion, means they are equal or not. We have determined this one. So again we will revise this one. Just see A, B, C, D हमारे पास 4 टर्म्स होंगी. इस बीच वाली B और C को हम मीन्स बोलते हैं और A और D को जो किनारे किनारे वाले टर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम. इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन आती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3, 4, 6, 7. हमें ये बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है. तो बेटा आपको पहले A, B, C, D इसको मार्क करना है. हमने इन किनारे वालों को A और D को एक्सट्रीम बोला है. सो प्रोडक्ट ऑफ extreme means product means multiply A into D. It means in A 3 it is there and D it is equal to 7. So A into D that is 21. Okay. B into C मतलब 4 into 6. ठीक है, 24. So क्या 21 24 के इक्वल है? नहीं है. अगर नहीं है so given number are not in equal proportion. ये equal proportion में नहीं है. एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, हमारे पास 4 टर्म्स थी, हमने लिखे A, B, C, D. हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब किनारे वाले, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच वाले, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. फिर हमने देखना है कि इनका जो रेशियो आया, इनके जो प्रोडक्ट आए हैं वो इक्वल हैं, तो ये इक्वल प्रोपोर्शन है. जैसे यहाँ पर नहीं है तो ये इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है. जैसे सेकेंड पार्ट इज 8, 10, 16, 20. So this is A, B, C, D. Again same method we will apply. If we have to show this is equal proportion or not, then what we have to do? We have to do product of extreme मतलब A into D. किनारे किनारे वाले terms A into D that is 160. In A 8 is there, in D 20 it is there. And product of means यानी बीच वाले B into C. In B 10 और C कितना है? 16. So 160. Yes, product of extreme is equal to product of mean. So given number are in equal proportion or are in proportion.
Similarly, we are having third part 5, 7, 40 and this 56. We can write A, B, C, D. ये हमारे उसके लिए, हमारे कंफर्ट के लिए है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब किनारे वाले टर्म्स, that is 5 into 56, that is 280, and product of means, that is 7 into 40. So this is 280. So as product of extreme is equal to product of means, so these are in a equal proportion. Similarly, fourth one is also part is like that. A, B, C and D. Product of extreme means A into D, that is 2592, and this mean B into C, 36 into 72, that is 2592. Product of extreme is equal to product of what means, so they are in a equal proportion. यहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया आपको आ गया होगा. ठीक है. Now question number 2 is डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म आ प्रपोर्शन. कर रहे हैं ये, नहीं कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इक्वल आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो जस्ट सी 90/450. अब यहाँ देखो आप, सेंटीमीटर है और ये रुपीज है, तो इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, इस रुपीज से ये रुपीज कट गया. यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल हो गया. 9 5 जा 45, दिस इज 1/5 एंड दिस इज 7 5 जा 45, सो 1/5. तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5. इसका मतलब है दे आर इन अ प्रपोर्शन. अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो दे आर इन अ प्रपोर्शन. नाउ सेकेंड पार्ट इज 35 mm to 300 centimeter and 30 ग्राम to 280 ग्राम. बेटा यहाँ देखो आप, ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 3/28. इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मिलीमीटर इस सेंटीमीटर से नहीं कटेगा. हमें या तो इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है या फिर इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है. इट इज योर चॉइस. मेरे को पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अगर मैं 35 इंटू 1 मिलीमीटर लिखूंगी तो भी तो ये 35 मिलीमीटर होगा. मैंने इसे लिखा 35. दिस पोर्शन इज कंप्लीट. दिस वन आई थिंक यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. बट यहाँ पर क्या है, ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखो मैंने लिखा इसको 35 इंटू 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो अभी भी तो 35 मिलीमीटर है. अभी क्या है कि इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है और मुझे पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो मैंने इस 1 मिलीमीटर की जगह क्या लिख दिया है, 10 सेंटीमीटर. 35 तो रहा है 35 इंटू 10 सेंटीमीटर. ओके, सॉल्व करूंगी तो मुझे मिला है 350/300. ये कैंसिल हुआ, तो 7/6 इज नॉट इक्वल टू 3/28. इट मीन्स दे आर नॉट इन अ प्रपोर्शन. नाउ थर्ड पार्ट इज 12r/30r, 8 किलोमीटर ओवर 20 किलोमीटर. आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि ये देखो ये टर्म्स कट रहे हैं, तो ठीक है. अगर मैं यहाँ पर 4 से इसको 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. यहाँ पर 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30. सो 2/5 इज इक्वल टू 2/5. सो दे आर इन अ प्रपोर्शन. अब आप यहाँ देखो बेटा, फोर्थ पार्ट, दिस इज 350 ग्राम ओवर 4 kg. दिस इज 75 सेंटीमीटर ओवर 8 मीटर. यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये ग्राम केजी को नहीं काट सकता है, ये सेंटीमीटर मीटर को नहीं काट सकता है. ठीक है, क्या करना है, हमें देखना है कि अगर हम कैसे करके चेंज कर सकते हैं. या तो इसको ग्राम में चेंज कर दो या फिर इसको केजी में चेंज कर दो. मुझे पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अगर आपको पॉइंट में लिखना है, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. ओके, मैंने लिखा 350 ग्राम ओवर 4 इंटू 1 kg. अभी भी 4 kg होगा. 75 सेंटीमीटर इज अपॉन 8 इंटू 1 मीटर. अभी भी 8 मीटर होगा. क्या कर रही हूँ यहाँ पर, 1 kg की जगह मैंने 1000 ग्राम लिख दिया है. 1000 ग्राम. 1 kg की जगह मैंने क्या लिखा है, 1000 ग्राम. और 1 मीटर की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 100 सेंटीमीटर. कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट सी बेटा. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको मैंने क्या किया है, 5 से किया है. ठीक है, डिवाइड किया है 5 से, ताकि आपको इजिली 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40. इस 1 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 7/80 बचा. मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा
25 4 जा 100। अगर आपको नहीं आता है 5 से पहले डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 आप यहाँ पर हमें मिला 7/80 और यहाँ पर मिला 3/8 4 जा 32। तो 7/8 3/32 के इक्वल नहीं होता है, सो दे आर नॉट इन अ प्रपोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको x मान देना है, जहाँ पर हमें एक टर्म नहीं दे रखा है x मानना है। हमें पता है कि अगर हमें ये वाली टर्म निकालनी है तो हमें एक इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दिस वी नो। देखो a b c d, एक्सट्रीम का आप समझोगे किनारे वाले जो हैं, तो क्या है 50 इंटू एक्स, और मीन का मतलब बीच वाले 75 इंटू 30। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो जो भी x के साथ मेरा मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 25 3 जा 25 2 जा और 2 15 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 45। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, देखो 20 यहाँ पर कुछ नहीं है, 5.2 1.3, ठीक है। a b c d, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 20 इंटू 1.3 और मीन x इंटू 5.2। क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ का जो भी होगा उसे नीचे डिवाइड में, 13 4 जा 52, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 5 जा 20, सो x इज इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट इज दिस इज x 63 3 21, a b c d, same formula, product of extreme that is x into 21 and mean 63 into 3। जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है वो हमारा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद दिस इज 3, सो 3 3 जा 9, x is equal to 9। Fourth part is 16 64, this if you are not having any term then it is better to write x आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर a b c d अगेन सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी किनारे वाले 16 इंटू 72 और यहाँ पर क्या है मीन 64 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, ये टर्म ऊपर की वही रहेंगी, नीचे 64। 16 4 जा 64 और 4 की टेबल में इसे 18 टाइम्स आता है ये, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो, सो एक्स इज इक्वल टू 18। Now our question number 4 is also same, fill in the blanks, but one equal to it is there। इक्वल टू है तो बेटा इट इज इजी फॉर अस, इसमें हम क्या करेंगे 8 ओवर x, यहाँ पर डैश था तो x लिखा, 16 ओवर 12 ये है हमारे पास। देखो क्या करना है, क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ लेके गई और इसको मैं यहाँ ले गई। 8 जो यहाँ था इसको नहीं छेड़ा, नीचे वाले टर्म्स जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 यहीं रखा इंटू 12 16 इंटू एक्स, ठीक है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो 8 इंटू 12 ओवर 16। देखो 2 से आप काटो, जैसे भी काटो आप देखो क्या होगा, वैसे कैंसिल करो इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6, ओके। 8 2 जा 16 और 2 6 जा 12, so x is equal to 6, okay। now x 72l 25 36, so x over 72 25 over 36, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, देखो x के साथ तो जाके कोई फायदा नहीं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्योंकि हमें x के साथ वाली टर्म्स तो हटानी होती है, x खाली रहेगा तो ठीक है। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में ये वाला है इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 25, ये यहीं पे है, ये पूरी टर्म यहीं पे है, मैंने सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है 72 को। 36 2 जा और 25 2 जा 50, सो x इज इक्वल टू 50। थर्ड पार्ट इज 200 ml 2.5 liter, this is x and this, so we can write this like this। अगेन यू कैन सी दिस वन, यहाँ पर ml है, यहाँ पर लीटर है, इसको चेंज करना है। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। देखो ये 20 मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2.5 इंटू 1l, ठीक है। यहाँ पर सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। 200 ml अपॉन 2.5 इंटू 1 लीटर की जगह मैंने क्या लिखा है 1000 ml। इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गए,
ठीक है। यहाँ का पॉइंट 10 बन के ऊपर गया और ये नीचे 10, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, जो x के साथ जो डिनोमिनेटर में था उसे कहाँ लेके गई मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में। सो 2 into 50, करेक्ट। 25 2 जा 50, आंसर इज 4। ओके, नाउ 65 गर्ल, 100 गर्ल, 26 बॉय और x बॉय। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो न्यूमिनेटर वाले हैं वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, 100 को 26 के साथ और x को 65 के साथ। फिर वैल्यू अगर x की निकालनी हो तो x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। 13 की टेबल में 13 2 जा 26, 13 5 जा 65 एंड दिस इज 5 2 जा 10। तो कितने बॉयज हैं हमारे पास, 40 बॉयज हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द प्रपोर्शन आर दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। कह रहे हैं कि पहला टर्म, दूसरा टर्म यानी A B C दिया है, D निकालो। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, सेम फॉर्मूले से। गिवन है हमारे पास A 21 है, B 49, C 33, D निकालो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या क्या होते हैं, ए और, देखो कैसे होगा ये, ए बी सी और डी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ए इंटू डी एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस मीन मतलब बी इंटू सी। ए की जगह 21, डी दिस इज एक्स, बी 49 एंड सी 33। एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा हमारे पास डिवीजन में, ओके। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, ओके, एंड 3 1 1 जा 31। सो आंसर इज 77। सेकेंड पार्ट इज, इन सेकेंड पार्ट बेटा जस्ट सी, A is 5.2, B is 3.9, C is X and D is 3. It is given. 3 proportion they have again given and third one number we have to find. ठीक है, again we will apply the same formula. Product of extreme is equal to product of mean. So A, B, C and this is D. Extreme A into D and this is mean B into C. So A की वैल्यू हम यहाँ से 5.2 लिया और D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, B की वैल्यू 3.9 और दिस C is X। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसके साथ वो नीचे जाएगा डिवीजन में। 13 की टेबल अगर आपको आती है तो 13 3 जा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 3 से ये 3 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आई, 4। So dear students, I hope you are getting these questions up to this time. Be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.